Now, today we will learn a new concept that is static members of a class. Okay. Now, you have already learned about this. Static class हम पहले भी पढ़ चुके हैं. We had learned about storage classes. Storage classes जब हमने पढ़ी थी तो we learned about 4 different storage classes, and they were auto, then you had extern and register and static. ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. And since we are concentrating right now on static data members, okay, तो static हमने जो पढ़ा था, static का क्या होता है कि the lifetime of a static variable is the entire program. The lifetime of a static variable is entire program, and the scope of a static variable depends where the variable is defined. मतलब आपका जो स्कोप है वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल कहाँ पे डिफाइंड है. ठीक है. इट इज नॉट फिक्स्ड, it is not global, it is not local, it depends where the variable has been defined. Okay, but the lifetime of the variable is the entire program. And next चीज जो आपकी थी एक initialization of the variable, static variable takes place only once in lifetime. मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स सिर्फ और सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में, एंड दे रिटेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. जबकि लोकल वेरिएबल के साथ क्या होता है कि जब वेरिएबल का स्कोप फंक्शन तक होता है, जैसे ही फंक्शन खत्म तो वेरिएबल का स्कोप खत्म और वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम जब वेरिएबल फिर से यूज में आता है तो इट इज क्रिएटेड अगेन, इट इज इनिशियलाइज्ड अगेन, इट इज यूज्ड अगेन, एंड वंस अगेन इट गोज आउट ऑफ स्कोप. तो बार बार वेरिएबल क्रिएट होता है, इनिशियलाइज होती है उसमें वैल्यू, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वेरिएबल डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है. ठीक है. एंड भी हो जाता है. बट स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ ऐसा नहीं होता है. स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे आर क्रिएटेड वंस in the beginning of the program, and they retain the value in the variable till the end of the program. जब तक प्रोग्राम रहेगा तो स्टैटिक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो रहेगी, it will stay there. The static variables are not again and again initialized. भले ही वेरिएबल दोबारा से रेफर होगा तो वो री इनिशियलाइज नहीं होगा. सो दिस वाज सिंपल जो हमने स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी उसमें स्टैटिक का मतलब यहाँ पे था. ठीक है. ये था. But now we are learning a new thing, that is static members of a class. तो अब हम static को पढ़ेंगे class के concept के साथ. So slightly the concept will be same as it was earlier, but थोड़ा सा concept में difference रहेगा. Now class में आपका जैसे होता क्या क्या है, you have data and functions in a class. class के अंदर आपकी दो ही चीजें हो सकती हैं. There are some data members, there are some functions in a class, and this all makes a class. And ये हम शुरू से मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ because object oriented programming is all about classes and objects. So you have to change the way you write programs, you have to change the methodology. आपको सीधा हर प्रोग्राम को जब किसी भी प्रोग्राम के बारे में आप सोचते हो तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ क्लास, एंड देन आप जब क्लास बना लेते हो तो फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हो. ठीक है. नाउ स्टैटिक, एज आई टोल्ड यू कि क्लास के अंदर डेटा होते और मेंबर्स होते, तो द मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी मेड स्टैटिक. both data members and functions can be made static.
तो स्टैटिक मेंबर्स ऑफ द क्लास में क्या क्या आते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स भी आते हैं, एंड लेटर ऑन वी विल स्टडी स्टैटिक मेंबर फंक्शंस. सो both data as well as functions of a class can be made static and then their behavior changes. ठीक है, उनका behavior कुछ अलग हो जाता है, normal data और normal functions से different हो जाता है. So we'll be learning about that in today's topic. Now, if we create a data member of a class as static, then उसकी कुछ properties होती हैं. It is initialized 0 and only once when the first object of its class is created. Now, जैसा कि मैंने बताया था आपको, static variables are only initialized once in their lifetime. Okay. Now, suppose एक example ले लेते हैं, then you will understand the things better. Suppose एक class है हमारी student, ठीक है? You have already made a program using this. एंड डेटा में हमारे पास रोल नंबर है, यू हैव द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ. वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस एग्जांपल, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल अगेन. एंड फंक्शंस हमने दो फंक्शंस बनाए थे, एक गेट डेटा एंड एक शो डेटा. गेट डेटा में हमने क्या किया था, इन सारी वैल्यूज को इनपुट कराया था यूजर से. सो दिस इज मेनली फॉर इनपुटिंग data in functions, data in inputting the data in members. ठीक है, data members इनकी values को input कराने के लिए. and show data to print the mark sheet. mark sheet का program था to display the mark sheet or to print the mark sheet of a student. We were using this show data function. ठीक है. now suppose अब जब भी कभी आप इस class का object बनाते हो main में, say in main function you say student s. now what are you trying to do through this, आप s नाम का एक object create कर रहे हो student class का. ठीक है, s is an object of student class. You are defining an object s of student class. now two things are happening. एक तो आपका object create हो रहा है, तो उसको memory allocate हो रही है in the RAM. This object like other variables are allocated memory. जब भी आप किसी variable को declare करते हो तो क्या होता है, उसको memory उसके लिए set aside होती है. ठीक है, तो object भी एक तरह का variable है. It will also require memory, so memory is set aside for the object. now how much memory will be set aside for the object depends on the data members in the class. ठीक है, तो अगर ये सारी value, suppose this roll number is integer type, this is say char say name 25. ठीक है, and PCM भी int है. suppose इस type के आपके ये variables हैं. so how do you calculate how many bytes will be required for this object s? 2 bytes will be required for roll number, 25 bytes will be required for name, 1 character each, 1 byte per character. तो 25 characters का name है, तो 25 bytes will be reserved for name. P, C and M. P के लिए 2 bytes, C के लिए 2 bytes and M के लिए 2 bytes. So if you find the total, now the total comes to be 25 plus 8. So that is 33. The total comes to be 33. So 33 bytes are allocated to one object of student class. यानी कि जब आप एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो 33 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट. कैसे कैसे एलोकेट होंगी, 2 बाइट्स फॉर रोल नंबर, 25 बाइट्स फॉर नेम एंड 2 बाइट्स ईच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ मार्क्स. ठीक है, मतलब कि जितने भी डेटा मेंबर्स आपके क्लास में होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास उसकी एक सेपरेट कॉपी होती है. ठीक है, सो सपोज इफ आई से स्टूडेंट क्लास के मैं 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूं, से स्टूडेंट S1, S2. नाउ व्हाट विल हैपन, 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट करे तो S1 को भी 33 बाइट्स अलॉट होंगी मेमोरी में, एंड S2 भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको भी 33 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी एलोकेटेड. तो जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे उतने हर ऑब्जेक्ट को
153 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी अलोकेटेड। सो हर ऑब्जेक्ट को जितने भी उसके डेटा मेंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उतनी स्पेस अलोकेट होती है, ठीक है। नाउ एवरी स्टूडेंट विल हैव हिज रोल नंबर, मतलब हर ऑब्जेक्ट का डेटा अलग होगा। जैसे मान लीजिए S1 इज स्टोरिंग द डिटेल्स ऑफ वन स्टूडेंट, S1 विल स्टोर द डिटेल्स ऑफ अनदर स्टूडेंट, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट विल होल्ड द डेटा ऑफ अ सेपरेट स्टूडेंट, ठीक है। सो दैट मीन्स S1 का डेटा और S2 का डेटा बिल्कुल अलग होगा। सपोज S1 का रोल नंबर है 1 2 3, S2 का रोल नंबर है 4 5 6। नेम दोनों के अलग होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक, बिकॉज दे आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट स्टूडेंट्स, टोटली टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। नाउ सपोज इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू से कीप वन वेरिएबल जिसमें मैं कितने स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं उनका काउंट रखना चाहते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू कीप अ काउंट ऑफ, आई वॉन्ट टू कीप अ वेरिएबल काउंट जिसमें मैं ये रिकॉर्ड रख पाऊं कि अभी तक कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड वन डेटा मेंबर, जैसे इंट रोल नंबर था आपका, फिर कैर नेम ऑफ 25, नाउ इंट PCM, ये तो आपका पहले का था सारा। नाउ यहाँ पे गेट डेटा था एक फंक्शन एंड एक शो डेटा। अब मैं चाहती हूँ कि एक काउंट के लिए अलग से एक डेटा मेंबर मेरे को ऐड करना है। सपोज आई एडेड वन काउंट डेटा मेंबर ऑल्सो हियर, और उसको इंटीजर टाइप ले लिया क्योंकि काउंट कभी डेसिमल में तो वैल्यू होगी नहीं, सो आई टुक इट ऑफ इंटीजर टाइप। नाउ अगर मैंने इसको काउंट को एक सिंपल डेटा मेंबर की तरह इसमें ऐड कर दिया हमारी क्लास में स्टूडेंट में, नाउ सी व्हाट विल हैपन। जब मैं एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी से S1 एंड S2, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए S1 एंड S2, तो S1 के पास अपनी एक कॉपी होगी, S1 ये है, S1 के पास रोल नंबर, नेम, PCM एंड काउंट, सबकी एक एक कॉपी होगी, सारे वेरिएबल्स की डेटा मेंबर्स की एक एक कॉपी होगी। एंड द सेम थिंग विल बी फॉर S2, S2 के पास भी अपने सारे मेंबर्स की कॉपी होगी, वैल्यूज की कॉपी होगी। सो रोल नंबर, नेम से PCM एंड काउंट, ठीक है। अब सपोज फर्स्ट पर्सन का रोल नंबर 1 2 3 है, नेम XYZ है, P में मार्क्स 76 हैं, इसमें 65 है, इसमें 73 है, एंड से काउंट हो गया 1, एक स्टूडेंट है ना। रोल नंबर 2 इज से 2 3 4 उसका रोल नंबर है, नेम है से PQR, फिजिक्स में मार्क्स है 63, केमिस्ट्री में है 85 एंड मैथ में है से 82, ठीक है। नाउ काउंट की वैल्यू, सपोज हमने कहा काउंट की वैल्यू यहाँ पे भी 1 हो गई। हाँ, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, सी रोल नंबर, नेम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स तो हर स्टूडेंट के अलग होंगे, तो उनके लिए सेपरेट स्पेस रिजर्व करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे इतनी स्पेस रिजर्व करना जरूरी है, लेकिन काउंट क्या हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए काउंट वेरिएबल अलग से लेना जरूरी है? काउंट तो पूरे क्लास का एक ही होगा ना। सी इफ आई वांट टू काउंट द स्टूडेंट्स ऑफ इन अ क्लास, अगर मेरे को स्टूडेंट्स को काउंट करना है क्लास में, तो हाउ डू आई स्टार्ट काउंटिंग? पहले स्टूडेंट से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। सपोज दिस इज योर क्लास, ये क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, दीज आर द स्टूडेंट्स, दे आर सीटेड हियर इन द क्लास, ठीक है। अब मेरे को इस क्लास में सारे स्टूडेंट्स का काउंट करना है, कितने बच्चे हैं इस क्लास में इस समय प्रेजेंट। सो हाउ डू आई स्टार्ट काउंटिंग? मैं एक किसी डायरेक्शन में काउंटिंग शुरू करूंगी। आई विल स्टार्ट द काउंटिंग बाय फ्रॉम 1, देन आई विल काउंट द नंबर ऑफ हेड्स। तो 1 के बाद मैं क्या करूंगी, काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगी, सेकेंड पर्सन को काउंट कर लूंगी, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करते करते what I am doing is I am trying to count the number of students in the class,
और सपोज यहाँ पे आकर के हमारा फाइनल नंबर आ गया 40 and now there are no students left in the class. I've counted all heads in the class by taking a counter variable and increasing it by 1 every time I am moving to a different person. ठीक है, तो ऐसे करते करते जब मैं लास्ट हेड पे पहुंचूंगी, whatever my count value is there, वो that will be the number of students in the class. ठीक है, तो मतलब मैंने कितने काउंट वेरिएबल लिया? मैंने सिर्फ एक काउंट वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज किससे किया? स्टार्टिंग में से 0 से, और जैसे जैसे मैं स्टूडेंट को एक स्टूडेंट को काउंट करती गई, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ काउंट बाय 1 ऑन मूविंग फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर. सो आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ काउंट बाय 1 ईच टाइम. तो मैंने काउंट के लिए क्या हर स्टूडेंट के लिए काउंट नाम का एक अलग से वेरिएबल लिया? नहीं. वी हैव जस्ट टेकन वन वेरिएबल नेम्ड काउंट फॉर द एंटायर क्लास, और उसी काउंट वेरिएबल को मैं बार बार अपडेट कर रही हूँ. 1 से 2 हो गया, वो 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, एंड सो ऑन. आई एम इंक्रीजिंग द सेम काउंट वेरिएबल बाय 1 ऑन काउंटिंग ईच स्टूडेंट. ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कर पाई बिकॉज काउंट नाम का मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रखा था पूरी क्लास के काउंट रखने के लिए. आई जस्ट टुक वन वेरिएबल, आई इनिशियलाइज दैट वेरिएबल इनिशियली बाय 0, एंड एवरी टाइम आई काउंटेड अ स्टूडेंट, या एवरी टाइम अ स्टूडेंट कम्स, आई इंक्रीज काउंटर वैल्यू बाय 1. ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरह से करती कि हर स्टूडेंट का काउंट वेरिएबल अलग अलग होता. ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, एक काउंट वेरिएबल पूरी क्लास के लिए मेंटेन किया था. नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि हर स्टूडेंट का काउंट वेरिएबल की अपनी कॉपी उसके पास सेपरेट है. ठीक, तो अब उस केस में क्या होगा, हर पर्सन का रोल नंबर अलग है, नेम अलग है, उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड वगैरह इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज आल्सो डिफरेंट, और साथ में काउंट वेरिएबल की भी उसके पास अपनी एक कॉपी है. तो सबकी अपनी अपनी काउंट वेरिएबल की कॉपी है जो इनिशियली क्या है, 0. ठीक है, हर एक के पास अपनी एक काउंट की कॉपी है, काउंट वेरिएबल की कॉपी, और सबके काउंट वेरिएबल की कॉपी इज इनिशियलाइज टू 0. इनिशियली तो आप काउंट को 0 ही रखोगे. ठीक है, नाउ व्हेन यू विल काउंट द फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के केस में काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी, सो इट विल बिकम 1. ठीक है, तो पहला वाला जो स्टूडेंट का काउंट वेरिएबल है दैट विल चेंज फ्रॉम 0 to 1. ठीक, अब जब हम दूसरे स्टूडेंट पे आएंगे तो हम फिर से काउंट को 1 से बढ़ाएंगे, लेकिन 1 से काउंट की वैल्यू 1 से 2 ना हो करके क्या होगा, काउंट की वैल्यू को जैसे ही तुम प्लस प्लस करोगे तो क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट के पास, हर स्टूडेंट के पास काउंट वेरिएबल की अपनी एक कॉपी है. तो होगा क्या कि उसकी कॉपी की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0. तो when 0 will be increased by 1, the count value will become 1. ठीक है, तो होगा क्या कि हर स्टूडेंट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज करने के बाद it will become 1. ठीक है, सबके काउंट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होने के बाद 0 से चेंज होकर के 1 हो जाएगी टिल द एंड. एंड में जा करके भी काउंट, इस लास्ट वाले स्टूडेंट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1. नाउ टेल मी, कैन आई गेट द काउंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास नाउ लाइक वी वर गेटिंग अर्लियर? दोनों में फर्क क्या है? पहले केस में मैंने क्या किया था, पूरी क्लास के लिए एक काउंट वेरिएबल मेंटेन किया, उसको 0 से इनिशियलाइज किया. Every time I am counting a student, I am increasing that one single variable by 1. So what will happen, every time I count a student, the value will increase by 1. So by the time I reach through the end of the class, through the last student, जो भी काउंट में वैल्यू होगी that is the total number of students in the class. But इस केस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, हर स्टूडेंट के पास अपनी एक काउंट की अलग कॉपी है जो कि इनिशियली 0 है,
और काउंट प्लस प्लस करने से वो काउंट की वैल्यू 0 से बढ़ करके क्या हो जाएगी 1. सो एवरी स्टूडेंट्स काउंट विल बी 1 एंड लास्ट स्टूडेंट का काउंट भी 1 होगा. एंड इन दिस वे वी आर नॉट गोइंग टू गेट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि इसे पूरी क्लास के लिए एक काउंट वेरिएबल ना होके हर स्टूडेंट के लिए हमने एक सेपरेट कॉपी काउंट वेरिएबल की रखी, जिसकी वजह से इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर अस टू काउंट द नंबर ऑफ इन द क्लास. जब भी हमने काउंट की वैल्यू को प्रिंट करके देखना चाहा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 दिखाई दी, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज ओनली काउंटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, क्यों? क्योंकि से उसके पास अपना जो काउंट नाम का वेरिएबल है वो इनिशियली 0 है और अपने आप को काउंट करने के बाद वो वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी. And in the previous case, what we were doing, we were maintaining a counter variable count, which was increasing by 1 for every student we were counting. So this is the difference. So coming back to our example, जो हम static data member की बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर, नेम, PCM के साथ अगर मैं काउंट वेरिएबल भी एक डेटा मेंबर की तरह ले लेती हूँ क्लास का, तो उस केस में क्या होगा, आई विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द काउंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, बिकॉज एवरी स्टूडेंट will have a separate copy of its count variable, and this way the counting of the students is not possible. हमें क्या चाहिए, काउंट नाम का वेरिएबल हो लेकिन पूरी क्लास के लिए एक सिंगल कॉपी उसकी एग्जिस्ट करे. तो फॉर दैट वी हैव टू टेक दैट वेरिएबल एज स्टैटिक टाइप. हमें उस डेटा मेंबर को एक नॉर्मल डेटा मेंबर ना बना करके आई हैव टू टेक दैट डेटा मेंबर एज स्टैटिक. और स्टैटिक डेटा मेंबर्स की खासियत ये होती है कि ओनली 1 कॉपी of that member is created for the entire class and is shared by all objects of the class which is intended for us. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके हिसाब से अगर आपको कभी भी किसी चीज का काउंटर मेंटेन करना है तो हर पर्सन अपना अपना एक अलग काउंटर मेंटेन करेगा, तो कभी भी आप पूरी क्लास की स्ट्रेंथ को नहीं पता कर सकते हो. But if you keep a single counter variable, then only it is possible to count the number of students of a class. So, normal जो data members होते हैं क्लास के, हर object के पास normal data members की अपनी एक separate copy होती है. So, count से variable जिसमें हमें पूरी क्लास के लिए एक single copy share करनी हो, means that variable is not defined at object level. ऑब्जेक्ट लेवल पे डिफाइन होने का मतलब है कोई भी वेरिएबल का कि हर ऑब्जेक्ट के पास उसकी अपनी एक कॉपी होगी. बट क्लास लेवल पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो द एंटायर क्लास शेयर्स 1 सिंगल कॉपी ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, सो स्टैटिक डेटा मेंबर्स बनाने से ओनली 1 कॉपी ऑफ दैट डेटा मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास एंड इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास. ठीक है, नाउ दूसरा चीज क्या थी जो मैंने पहले भी बता दी थी अभी, इट इज इनिशियलाइज 0 एंड ओनली वंस व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. नाउ स्टैटिक वेरिएबल्स का एक तो पॉइंट ये है कि पूरी क्लास के लिए एक सिंगल कॉपी उनकी शेयर होती है. सो एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ सेपरेट कॉपी ऑफ सच डेटा मेंबर्स व्हिच आर स्टैटिक इन नेचर. पूरी क्लास लेवल पे सिर्फ एक कॉपी उनकी मेंटेन होती है, नॉट एट ऑब्जेक्ट लेवल, दे आर डिफाइंड एट क्लास लेवल. एंड दूसरी चीज, दे आर ओनली इनिशियलाइज्ड वंस इन देयर लाइफ टाइम. और कब वो इनिशियलाइज होते हैं, जब पहला ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट होता है क्लास का, देन ओनली द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम. उस बाद वो अपनी वैल्यू को रिटेन रखता है एंड कब तक, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, so such type of variables are static variables are most suitable for variables that need to hold the value within them till the end of the program. So ऐसे variables को हर बार initialize नहीं होना चाहिए. They should be able to remember the value that was there earlier and उसमें जो भी changes करोगे वो changes उसमें reflect होने चाहिए.
and the variable should exist till the end of the program. So such variables are created and initialized when the first object of the class is created, and they stay, their lifetime is till the entire program. They retain the value within them. Now, it is accessible only within the class, but its lifetime is the entire program. Now, they are talking here about the scope and the lifetime. तो स्कोप क्या है आपका स्टैटिक वेरिएबल का विद इन द क्लास, ठीक है? क्यों है? क्योंकि इसे डेटा मेंबर है, तो डेटा मेंबर्स का स्कोप क्या होता है? हम प्राइवेट सेक्शन में अगर डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप क्या है? विद इन द क्लास. एंड इफ यू डिफाइन इट एट अ पब्लिक लेवल, देन द स्कोप इज द मतलब एंटायर प्रोग्राम या हर जगह से एक्सेस हो सकता है, ठीक है? बट नॉर्मली वी डिफाइन इट इन द प्राइवेट सेक्शन. एंड द लाइफ टाइम इज द एंटायर प्रोग्राम. तो जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता है, स्टैटिक वेरिएबल्स मेंटेन देयर वैल्यूज, दे कीप देयर वैल्यूज, दे प्रिजर्व द वैल्यूज विद इन देम. तो आखिरी तक उनके अंदर जो वैल्यू है उसको वो स्टोर करके रखते हैं. एंड दे आर लॉस्ट ओनली व्हेन द प्रोग्राम स्टॉप्स. So their lifetime is the entire program, and the scope is the class in which they are defined. Now, suppose we'll take an example जिससे आपको static class का use clear हो जाएगा. Now here the same example we are taking, हमें एक counter variable लेना है suppose. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक class बनाई counter, ठीक है? एक class counter बनाई और उसमें एक वेरिएबल लिया n, int n. सो एक डेटा मेंबर है n, और एक स्टैटिक मेंबर लिया इंटीजर टाइप, उसको स्टैटिक डिफाइन कर दिया, उसका नाम है काउंट. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ इज कि इससे n क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेवल पे डिफाइन हो रहा है. n इज डिफाइंड एट ऑब्जेक्ट लेवल एंड काउंट इज डिफाइंड एट क्लास लेवल. और दोनों में फर्क क्या है? जो भी वेरिएबल क्लास लेवल पे डिफाइन होता है, ओनली वन सिंगल कॉपी ऑफ दिस वेरिएबल एग्जिस्ट फॉर द एंटायर प्रोग्राम. एंटायर प्रोग्राम की जगह क्लास कहेंगे हम. एंड ऑब्जेक्ट लेवल पे जो भी वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, such variables are defined at object level. That means every object has a data member called n. मतलब जो ऑब्जेक्ट लेवल पे वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, हर ऑब्जेक्ट के पास n वेरिएबल होगा, उसकी एक सेपरेट कॉपी होगी. लेकिन जो क्लास लेवल पे वेरिएबल डिफाइंड होते हैं, उनकी एक सिंगल कॉपी सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर होती है, ठीक है ना? उसको करने के लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है. आई जस्ट हैव टू add this keyword static before declaring the variable. नॉर्मली हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? मैं ये स्टैटिक नहीं लिखती अगर, तो int count. now count would have been a normal variable like n और count एक जैसे वेरिएबल हो जाते, ऑब्जेक्ट लेवल पे दोनों वेरिएबल्स डिफाइन हो जाते हैं. 2 bytes will be allotted to n and 2 bytes for count for every object, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैंने स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे यूज कर लिया, तो उससे क्या होगा, काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट तो होगा, बट स्टैटिक होने की वजह से अ सिंगल कॉपी ऑफ दिस विल बी क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास. तो अगर आप 100 ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइन कर दोगे इस काउंटर क्लास के, तो हर ऑब्जेक्ट के पास काउंट की सेपरेट कॉपी नहीं होगी. There will just be one count variable for the entire class, irrespective of जितने भी ऑब्जेक्ट आप उस क्लास के डिफाइन करते हो, ठीक है? और तभी मैंने आपको यूज बताया था, तभी आप काउंट मेंटेन कर पाओगे. किसी भी चीज का काउंट मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ एक काउंटर ही रखना पड़ेगा. अगर जितने लोगों को काउंट करना है, हर एक का अपना एक काउंटर रखोगे, तो कभी भी आप काउंट नहीं कर पाओगे कि कितने टोटल पीपल हैं, ठीक है? अब इसमें हमने क्या किया है, एक गेट डेटा फंक्शन बनाया जिसमें हमने जो भी वैल्यू पास हुई थी नंबर, उसको सेट कर दिया n is equal to number. So whatever value is passed to get data function,
that will be stored in n variable, and immediately I'll increase the value of count by 1. ठीक है, तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका गेट डेटा फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो एवरी टाइम आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ काउंट बाय 1. नाउ सिमिलरली हमने क्या किया, शो काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, शो काउंट नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें हमने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को सिंपली डिस्प्ले कराया है. नथिंग मोर, वी हैव जस्ट displayed the value of count within this function. We just want to see कि count variable की वैल्यू क्या रहती है. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, इस वेरिएबल को मेमोरी अभी अलॉट नहीं होगी. आपने बस बता दिया कि ये स्टैटिक टाइप डेटा मेंबर है, इसका मतलब ये क्लास लेवल पे एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, बट नो मेमोरी विल बी अलॉटेड टू इट, बिकॉज मेमोरी क्लास जब क्रिएट करते हो तो कोई भी मेमोरी किसी को अलॉट नहीं होती है. मेमोरी कब अलॉट होती है किसी डेटा के लिए, व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल विच यू हैव टेकन एज स्टैटिक, उसको आप ग्लोबल लेवल पे डिफाइन कर देते हो, इसलिए हमने इसे मेन के बाहर डिक्लेयर किया. लेकिन ये काउंटर क्लास का है, तो हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिख दिया इंट काउंटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट. इससे होगा क्या, काउंट नाम का आपने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, ग्लोबल लेवल पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आपने काउंट नाम का, और ये काउंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इट इज बिलोंगिंग टू द काउंटर क्लास. एंड हाउ यू नो दिस, बिकॉज आपने यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्लास का नाम भी लिखा है. सो विच काउंट वेरिएबल यू आर टॉकिंग अबाउट, द वन दैट बिलोंग्स टू काउंटर क्लास. ठीक है, तो इस लाइन से क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन से आपने उसको इंटीजर टाइप डिफाइन किया. सो memory will be allotted here. Memory is allotted to this variable. Since it is of integer type, so 2 bytes will be allotted to this variable count. And second number पे external जो variables होते हैं या global variables होते हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि local variables do not get automatically initialized. उनका initialization हमें करना पड़ता है. ठीक है, मान लो आपने एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया सम, तो सम को आपको फोर्सफुली इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से. बट ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर आप उनको इनिशियलाइज नहीं भी करोगे तो दे विल बी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड बाय 0. ठीक है, तो दो चीजें होंगी इस लाइन से, इस पर्टिकुलर लाइन से दो चीजें हो रही हैं. आपने जो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है अपनी क्लास में, उसको आपने ग्लोबल लेवल पे डिफाइन कर दिया वेरिएबल को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी विल बी अलॉटेड टू दिस वेरिएबल. सो स्पेस विल बी रिजर्व्ड, 2 bytes ऑफ स्पेस विल बी रिजर्व्ड इन द मेमोरी फॉर दिस वेरिएबल काउंट which belongs to the counter class, and this count will be initialized by 0. ठीक है, अब इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो ही चुकी थी. अब आपने मेन फंक्शन बनाया. मेन फंक्शन में हमने क्या किया, 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए काउंटर क्लास के. Now tell me how many bytes will be allotted to these objects separately. C1, C2, C3 and C4. ये 4 ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए. Now when is memory allotted to an object? Whenever an object of a class is created. तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स 4 डिफाइन कर रहे हो, मीन्स आप 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तो उनको मेमोरी अलॉट होगी. Now how many bytes will be allotted to every object? 2 bytes या 4 bytes? So every object will be allotted 2 bytes. Why not 4 bytes? Because सिर्फ मेमोरी जो allocate होगी वो किसके लिए होगी, n के लिए, and not for count. Because n is defined at object level, जबकि जो count variable है वो पूरी क्लास के लिए एक सिंगल कॉपी शेयर होगी. तो काउंट के लिए हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग मेमोरी अलोकेट नहीं होगी. तो एवरी ऑब्जेक्ट, द C1, C2, C3, सबको सिर्फ 2-2 बाइट्स मेमोरी अलॉट होंगी. और किसके लिए, n वेरिएबल के लिए. बस ओनली फॉर n वेरिएबल. काउंट के लिए बस पूरी क्लास लेवल पे सिर्फ 2 बाइट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर काउंट वेरिएबल एट द क्लास लेवल.
ठीक है। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन करा के C1 डॉट शो काउंट, C2 डॉट शो काउंट, C3 डॉट शो काउंट एंड C4 डॉट शो काउंट फंक्शन किया। मींस 4 बार मैंने ये फंक्शन को कॉल किया शो काउंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो अब होगा क्या, इनिशियली हमारा काउंट किससे इनिशियलाइज था, काउंट को हमने इनिशियली किससे इनिशियलाइज किया था, एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज विथ 0। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की मदद से हम काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ऑल 4 काउंट्स आर शोइंग 0, क्योंकि से काउंटर अभी इनिशियलाइज हुआ है 0 से। हमने काउंट की वैल्यू को कहाँ पे इंक्रीज कराया है, गेट डेटा में। तो जितने बार गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, every time get data function is called, the value of count will increase by 1. तो show count में सबका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, काउंट की वैल्यू क्या शो होगी, काउंट 0, काउंट 0, काउंट 0 एंड काउंट 0। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपने कहा C1 डॉट गेट डेटा एंड उसमें पास करिए आपने वैल्यू 10, now what will happen, this function will be called, गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, ये 10 वैल्यू नंबर में पास होगी, n में वैल्यू सेट हो जाएगी 10 फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट C1, n में वैल्यू सेट हो जाएगी 10 एंड द काउंट वैल्यू which is at the class level which was initially 0, it will change to 1। काउंट प्लस प्लस से काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके जस्ट बाद यहाँ पे मैं लिखूं C1 डॉट शो काउंट, इसके जस्ट बाद जैसे ही गेट डेटा फंक्शन कॉल करा, इसके जस्ट बाद मैं लिखूं C1 डॉट शो काउंट, व्हाट आउटपुट डू यू एक्सपेक्ट, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, काउंट कोलन 1, क्योंकि इसे काउंट की वैल्यू क्या हो गई है आपकी इस समय 1। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, आपने कहा C2 डॉट गेट डेटा 20, अब क्या होगा, फिर से ये वाला फंक्शन कॉल होगा। नाउ दिस टाइम 10 की जगह इसमें वैल्यू पास होगी 20, सो C2 डेटा के लिए n में वैल्यू सेट हो जाएगी 20 एंड काउंट विल अगेन इंक्रीज बाय 1। तो काउंट वेरिएबल तो एक ही चल रहा है हमारा, है ना, n की अलग अलग कॉपी है, हर ऑब्जेक्ट के पास n की एक सेपरेट कॉपी है, लेकिन काउंट वेरिएबल हमारे पास पूरे प्रोग्राम में एक ही है। So now this one value will increase by 1 and will become 2. So if इस लाइन के बाद मैं C2 डॉट शो काउंट प्रिंट करूं, शो काउंट, then the output that will be displayed is count colon 2, क्योंकि इसे अब काउंट की वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है 2। सिमिलरली C3 डॉट गेट डेटा 30, मतलब थर्ड टाइम आप गेट डेटा फंक्शन को कॉल करोगे, काउंट फिर से एक बार C3 के n को सेट कर देगा 30, लेकिन काउंट की वैल्यू 2 से बढ़ करके हो जाएगी 3। सो इफ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट हियर आफ्टर दिस गेट डेटा, यू विल गेट द काउंट वैल्यू एज 3 एंड इसके बाद आप अगर काउंट की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्हें एक साथ कॉल कर लिया है, बट यू कैन कॉल the count function after every get data. I'll suggest कि एक साथ count function को कॉल करने की जगह आप count function को हर get data function के just बाद कॉल करके देखो, you will find that the count value is increasing by 1 every time, and that is happening because the count variable we had taken was of static type. तो सिर्फ एक कॉपी उस वेरिएबल की मेंटेन हो रही थी, वो ही काउंटर इनिशियलाइज 0 से हो रहा था, एंड एवरी टाइम द गेट डेटा फंक्शन वाज कॉल्ड, एवरी टाइम काउंट वाज इंक्रीज्ड बाय 1। सो एवरी टाइम काउंट विल इंक्रीज बाय 1 एंड द वैल्यू इज रिटेन्ड टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो हर बार आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 से इनिशियलाइज सिर्फ वो एक बार होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड इट विल keep its value till the end of the program. So that is how you can maintain the counter of any particular say object. अब जब यहाँ पे आप 4 बार काउंट फंक्शन को कॉल करा है, तो आप अगर आउटपुट देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, so the count value is showing 4 every time.
चाहे आप C1 के थ्रू कॉल करो, चाहे आप C2 के थ्रू, C3 या C4, किसी के भी थ्रू काउंट फंक्शन, काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराओगे अगर आप, द आंसर विल बी 4 बिकॉज काउंट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो गई है ना। 4 कैसे हुई? काउंट की वैल्यू हर बार इंक्रीज कहाँ हो रही है? गेट डेटा फंक्शन पे। And how many times have we called get data function? We have called get data function 4 times. So every time get data function is called, the variable count is increased by 1. So that is how the counter is maintaining its value. It is increasing by 1 every time. ठीक है? So do run this program. This is the best example for static data members. इस प्रोग्राम को लिख के आप रन करके देखो। आई विल सजेस्ट कि आप हर गेट डेटा फंक्शन के बाद यहाँ पे C1.showCount एक साथ करने की जगह आप ग्रेजुअली देखो कि काउंट की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है या नहीं। सो यू कैन मेक द चेंजेस इन द प्रोग्राम हियर। आप हर उसके गेट डेटा के बाद आप काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो बाय यूजिंग द काउंट फंक्शन, and you will find that the count is gradually increasing by 1 every time. So here the count value will be 1, यहाँ 2 दिखाएगा, यहाँ 3 दिखाएगा और यहाँ 4 दिखाएगा। ठीक है? Now just making this small change has done this. Now what I suggest is next time आप same program को run this same program, आपको बस चेंज क्या करना है? just remove this word. Just remove by removing the static keyword and एक आप ये वाली लाइन को omit कर दोगे, just omit this line. आप पूरा प्रोग्राम सेम रखोगे, just omit this static word here and इस पूरी लाइन को आप हटा दोगे प्रोग्राम से, and then run the program, run the same program again and see what the output is. I'll show you what the output will be. अगर आप ऐसा कर देते हो, check out for yourself. ये तो सारे केसेस में आपकी वैल्यू 0 आएगी ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है? लेकिन जब आप get data 10 फंक्शन कॉल करने के बाद C1.showCount करोगे, here the value of count will come as 1. ठीक है? दोबारा showCount फंक्शन को कॉल करने के बाद, सेकेंड गेट डेटा फंक्शन कॉल करने के बाद जब आप काउंट की वैल्यू को प्रिंट देखोगे तो अगेन इट विल से 1. थर्ड टाइम में भी आउटपुट आपका 1 आएगा एंड फोर्थ में भी आपका 1 आएगा एंड ये 4 केसेस में भी आपकी वैल्यू काउंट की 1 ही आएगी. नाउ व्हाई दिस विल हैपन, you need to know the explanation. ये लाइन आप याद रखना, ये आपको नहीं रखनी है. ठीक है? We are talking about this program, so you just check out the program, run it for yourself and see. ये चारों आउटपुट आपके जो 1 2 3 4 आ रहे थे पहले, अब ये क्या आएंगे? So here what we have made the change. So I was telling you कि अब नेक्स्ट बार जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो जस्ट रिमूव दीज 2 थिंग्स. आप इस लाइन को डिलीट करोगे, इसमें मैं क्लियरली कर देती हूँ, जस्ट डिलीट दिस कैरेक्टर
एंड डिलीट दिस लाइन। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका जो काउंट वेरिएबल है वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा क्लास में। एंड देन सी द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोग्राम। ये चारों में आपकी काउंट की वैल्यू 0 दिखाई देगी। हर गेट डेटा के बाद जब आप काउंट की वैल्यू को शो करोगे, जैसे C1 डॉट शो काउंट, तो काउंट की वैल्यू आपकी क्या शो होगी, काउंट विल कम टू बी 1। इसके बाद सेकेंड टाइम आप गेट डेटा के बाद कॉल करोगे शो काउंट को दोबारा से, अगेन यू विल गेट काउंट 1। हर केस में आपको काउंट की वैल्यू 1 ही दिखाई देगी। ओके, इन ऑल दीज केसेस, और यहाँ भी आपको काउंट की वैल्यू 1 ही दिखाई देगी। जबकि पिछले केस में क्या हो रहा था, 1 2 3 4, द वैल्यू ऑफ काउंट वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1, देन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यहाँ क्या हो रहा है, हर बार काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 रहती है और फिर 0 से बढ़ करके 1 हो जाती है। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग इज, जब आप गेट डेटा फंक्शन को कॉल करोगे पहली बार, okay, so this function will be called, get data function will be called int number। ये n में वैल्यू असाइन हो जाएगी आपकी 10 and count will increase by 1। so initially it was 0, it will increase by 1। ठीक है, रादर वो, बल्कि इसमें गार्बेज वैल्यूज भी आ सकती है, बिकॉज आपका काउंट को हमने इनिशियलाइज कहीं भी नहीं किया है। तो क्या होगा कि काउंट आपका क्या होगा, नंबर को तो हम 1 से 10 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, बट काउंट वेरिएबल को हम कहीं भी इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। या तो हम काउंट को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दें, तो व्हाट विल हैपन, काउंट को जब आप 1 से इंक्रीज करोगे तो 0 से बढ़कर के वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। So you have to write this line also, count is equal to 0 semicolon, because count को initialize करना भी जरूरी है ना। count जब 0 से initialize होगा और फिर आप कहोगे count प्लस प्लस, तो count की वैल्यू 0 से बढ़कर के 1 हो जाएगी। so you will get the output as count 1। फाइन, यहाँ तक आपका आउटपुट ठीक है। जब सेकेंड टाइम गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा तो अगेन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड फॉर द सेकेंड टाइम, गेट डेटा विल बी कॉल्ड फॉर द सेकेंड टाइम। अगेन व्हाट विल हैपन, the n value will be set to 20 and count will again be reinitialized to 0 and then it will be increased by 1। तो काउंट की वैल्यू पहले 0 थी, 0 से बढ़कर के 1 हो गई, तो फिर काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1। so every time get data function is called, count will first initialize to 0 and then it will increase by 1। so every time the count value will be 1। लोकल वेरिएबल्स हर बार इनिशियलाइज होते हैं, जबकि स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, जबकि यहाँ जो हमारा वेरिएबल अब हमने लिया है काउंट को, मैंने ये स्टैटिक वर्ड यहाँ से हटा दिया, तो अब हमारा काउंट क्या हो गया, एक नॉर्मल डेटा मेंबर हो गया। और नॉर्मल डेटा मेंबर हर बार इनिशियलाइज होगा, जब जब वो वेरिएबल एनकाउंटर होगा, दिस काउंट इज इक्वल टू 0 लाइन विल रन एवरी टाइम and it will increase the counter by 1। so this is the difference between a static data member and a normal data member। so whenever you want to maintain a variable which keeps a count of something, like अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक में देखो, तो फेसबुक में जो नंबर ऑफ लाइक्स हैं और जो नंबर ऑफ कमेंट्स हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग एज सुन एज यू एड अ लाइक। जैसे ही आपकी एक लाइक ऐड होती है, तो जो नंबर ऑफ लाइक्स हैं वो अगर आपका 10 था तो इट इंक्रीजेस टू 11, या आपके नंबर ऑफ कमेंट्स 10 थे एंड वन मोर पर्सन हैज एडेड अ कमेंट, इट चेंजेस द वैल्यू टू 11। तो जहां कहीं भी आपको काउंटर मेंटेन करना है, you need to preserve the previous value and you have to add 1 to the previous counter value, then you have to use static type data members। so static data members, as I told you, static data members are
defined at class level. First thing is this, they are defined at class level, initialized only once in their lifetime, only one copy of such variable is shared by all objects of the class. By all objects of the class. And finally, they retain the value till the end of the program. So these are the characteristics of static data members. So whenever you are asked to write about static data members, so you can write these features. ये 4 पॉइंट से आप स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक नॉर्मल डेटा मेंबर से डिफरेंशिएट कर सकते हो. They are defined at class level. Only one copy of such variable is shared by all the objects of the class. They are initialized only once in their lifetime at the beginning. Beginning में एक बार बस initialize होते हैं बस. And they retain the value till the end of the program. Lifetime इनका कितना होता है? Entire program. So this is all about static data members of a class. It's a very important topic. तो दोनों programs को आप run करके देखना, एक बिना static के और एक with static data member, and see the difference. Run both the programs and see how the programs differ in their output. So that will explain you the concept of static data members. Now in the next class, we will cover static functions. Okay. So I'll end the class here.